नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अग्निमित्र पाल ने दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं को दी श्रद्धांजलि। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्र पाल ने गुरुवार को महालय के दिन पितृपक्ष व देवी पक्ष के आगमन के शुभ अवसर पर सिलीगुड़ी में हाल के दिनों में विभिन्न घटनाओं में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। वे आज सुबह सिलीगुड़ी के महानंदा नदी के लाल मोहन मौलिक विसर्जन घाट पहुंची थी और अपने समर्थकों के साथ मृत भाजपा कार्यकर्ताओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। প্রথমত আমার পিতামহ প্রপিতামহ পিতামহী প্রপিতামহী আমার শাশুড়ি আমার যা আমার সেজ কাকা এবং তারপর আমার 112 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা যাদেরকে এই সরকার খুন করেছে তাদের নাম করলাম, তাদের নামে আজকে তর্পণ করলাম। খুব ভালো লাগলো। প্রথম এর আগে কোনোদিন তর্পণ করিনি, আজকে প্রথম আপনাদের এখানে এসে শিলিগুড়িতে এসে এই মহানন্দা নদীর পাশে তর্পণ করা মহালয়ের দিন খুবই ভালো লাগছে। মায়ের কাছে প্রথমত মা দুর্গার কাছে এটা বলবো যে আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ আমরা করোনাতে জর্জরিত, অর্থনৈতিক অবস্থা খুব তলানিতে, সবাই খুব কষ্টে রয়েছি আমরা। এখনো আজকের দিন অবধি মানুষ মারা যাচ্ছে। মাকে বলবো যে মা, এই করোনার যে রোগটি এটাকে নির্মূল করে দিন। এবং এটা দরকার ছিল মানুষকে বোঝানোর জন্য যে মানুষ কতটা তুচ্ছ, সেটা বোঝানোর জন্য মা দুর্গা বোধহয় করোনাকে পাঠিয়েছিলেন। আশা করি আমরা মনুষ্য জাতি আমরা এটা বুঝেছি। আমরা এতদিন কাউকে সম্মান করিনি, নিজেদের করিনি, নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছি, কাটাকাটি করেছি, পৃথিবীকে সম্মান জানাইনি, জলাশয় বুঝিয়ে দিয়েছি, বাড়ি তৈরি করেছি জলাশয় বুঝিয়ে, গাছ কেটেছি, জন্তু জানোয়ার মেরেছি, কাউকে সম্মান করিনি। তাই মনে হয় যে আমাদের বোধহয় শিক্ষা হয়েছে, এটা দরকার ছিল। কিন্তু এবার মাকে বলি, মা এটা নির্মূল করে দিন, মনুষ্য জাতি আবার ভালোভাবে বাঁচুক। আর বাংলাকে মাকে বলবো আলাদাভাবে, মা বাংলাতে যাতে শান্তি ফিরে আসে সেইটা মায়ের কাছে প্রার্থনা করব। কেন এত সন্ত্রাস, এত মৃত্যু, এত মহিলাদের উপর অত্যাচার আর মা নিতে পারছি না। बाघाजतीन एथलेटिक क्लब की ओर से रोड रेस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में रामजान अली व महिला वर्ग में पायल ने मारी बाजी। शुभ महालय के दिन बृहस्पतिवार को बाघाजतीन एथलेटिक क्लब की 36वां रोड रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। माटीगारा रॉयल अकेडमी से रोड रेस प्रतियोगिता शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए बाघाजतीन क्लब पहुंचकर समाप्त हुई। रोड रेस प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। पुरुष वर्ग व महिला वर्ग के 3 प्रतियोगी को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पुरुष वर्ग में रामजान अली प्रथम, संदीप शाह द्वितीय एवं रतन वर्मन तृतीय स्थान हासिल की, जबकि महिला वर्ग में पायल मलिक प्रथम, रोशनी मंडल द्वितीय एवं पियाली विश्वास तृतीय स्थान पर रही। प्रथम स्थान हासिल करने वाले को 7,000 रुपये नगद व ट्रॉफी, द्वितीय स्थान हासिल करने वाले को 5,000 रुपये नगद व ट्रॉफी एवं तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतियोगी को 3,000 रुपये नगद व ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को मेडल प्रदान किया गया। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया था। একটা পরিস্থিতি হয়েছিল যখন ক্লাব কর্তৃপক্ষ বিধানমন্ত্রী ছিলেন যে এই পরিস্থিতিতে ওয়ান প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যে এই দৌড়টা এবছর স্থগিত হয়ে যাবে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা সবাই অনুরোধ করেছিলাম যে 36 বছরের যে একটা লম্বা দৌড়, একটা বড় জার্নি, অনেক কষ্ট করে অনেক স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে ক্লাব এটাকে কন্ট্রিবিউট করেছে এবং অনেক প্রতিযোগিতা কিংবদন্তি অ্যাথলিট, ক্রীড়াবিদ, কপিল দেব, মিল্খা সিং, পিটি উষা তারা এসছে এই রোড রেস উপলক্ষে। তো এই করোনা আমলে যত শুরু করে হলেও
সংক্ষিপ্ত কালে হলেও এই রোড রেসের জার্নিটা ব্রেক করাটা খুব কষ্টদায়ক এবং বেদনাদায়ক হবে। সেই অবস্থার মধ্যে আর এই রোড রেসগুলোকে ভার্চুয়াল করা সম্ভব নয়। কাজে সংক্ষিপ্ত সারে বাংলাদেশের ক্লাবে রোড রেস করব এবং আমার মনে হয় আমাদের রাজ্যের তো বটেই, দেশের এই পরিস্থিতির মধ্যে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম করা, আমরা সবাইকে বলেছি যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রেখে। प्रधानमंत्री मोदी का आज 70वां जन्म दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राहुल गांधी सहित कई राष्ट्राध्यक्षों ने दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्म दिवस है। पीएम मोदी आजाद भारत में जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर को गुजरात के वाडनगर में हुआ था। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर बीजेपी 14 से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। वहीं पीएम के जन्म दिवस पर देश और दुनिया के कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित देश के सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने पीएम मोदी को 70वें जन्मदिवस पर बधाई दिया है। मार्केल ने कहा कि आपके नेतृत्व में भारत और जर्मनी के बीच रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं। उम्मीद है कि आगे भी कायम रहेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस पर बधाई दी। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी और ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और सानदंत रखे तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहे। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 3 करोड़ के पार। यूएन चीफ ने कहा, महामारी से लड़ना है तो दुनिया को साथ आना होगा। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा हो गया है। हालांकि इस दौर में एक अच्छी खबर है कि ठीक होने वाले रोगियों की संख्या भी अब 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा हो चुकी है। महामारी से मरने वालों की संख्या 9,44,000 से ज्यादा हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। गुरुवार सुबह दुनिया में कोरोना से संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा हो गया। खास बात यह कि 2 से 3 करोड़ केसेस का आंकड़ा सिर्फ 40 दिन में पूरा हो गया। यानी संक्रमण की रफ्तार अब सबसे ज्यादा है। करीब 100 साल पहले फ्लू से 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 1918 से लेकर 1919 में इन्फ्लुएंजा से दुनिया में 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। उस वक्त दुनिया की 1/3 आबादी संक्रमित हो गई थी। महालय के दिन जलपाईगुड़ी में पितरों को किया गया तर्पण। कोरोना संक्रमण के बीच भी महालय का पर्व जलपाईगुड़ी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरी रात लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और आज गुरुवार सुबह से ही राजबाड़ी दीघी से लेकर तेस्ता नदी तक काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और उन्होंने अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित की। বিশ্বকর্মা পুজো একটাই আবেদন প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেক মানব জাতির ভিতরে একটি করে ঈশ্বরের বাস। সুতরাং শুভ চেতনায় জাগ্রত হোক মানব জাতি, সুকল্যাণ হোক, প্রগতির দিকে এগিয়ে চলুক। আমরা প্রতি বছর এখানে আমরা পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে আসি। এবছর আমরা এসেছি, যেহেতু এবার করোনার একটা মহামারী চলছে, সেজন্য এবার লোকজন একটু কমই এবং আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে দূরে দূরে থেকে যতখানি মেনটেন করা যায় সেই মেনটেন করে আমরা কাজটা করবো। এখনই আসলাম, এখনো আমাদের তর্পণ পাইনি। একদল করছে, ওরা গেলে আমরা নাম দুইটাই উৎসব একসাথে, বিশ্বকর্মা পূজা এবং মহালয়া। আমি আজকে মা বাবার তর্পণ করতে আসছি। কোথায়? যেটা বলে যে বিশ্বাস সবার যে এই দিনটাতে মানে মা বাবাকে জল দেওয়া হয় এবং আজকে আমি স্বপ্নেও দেখেছি, এটা প্রত্যেক বছরই হয় যে মা বাবাকে আমি জাস্ট স্বপ্নে দেখি যে মানে মনে হচ্ছে খুব কাছে চলে আসে ব্যাপারটা। এর আগে আমি গয়াতে গিয়ে দিয়ে আসছি, এখন প্রত্যেক বছর আমি এটা করি। তারপরে আবার দেবীর পূজা আরম্ভ হবে। আজকে তর্পণ শেষ। তিল তর্পণ করে কেন? আমাদের পিতৃকুল মাতৃকুল যারা গত হয়েছে তাদের শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে তারা যেন তিল জল দেয়, এই জন্য আমরা তাদের উদ্দেশ্যে তিল তর্পণটা করাই। পূর্বপুরুষদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে তিল তর্পণ করলাম, যাতে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই জলটা পায়, তারা যেন যেখানেই থাকে ভালো থাকে, শান্তিতে থাকে। এটা হচ্ছে জুগলি পার্ক শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দিরের।
देश में 24 घंटे में सामने आए 97,000 से अधिक नए पॉजिटिव केसेस, कुल मामले 51 लाख के पार। 130 से अधिक जनसंख्या वाले भारत में कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे यहां कहना आसान नहीं होगा कि इसकी संख्या कहां जाकर थमेगी। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 97,000 से अधिक मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या 51 लाख के पार हो गई। मौतों के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते कुछ समय से रोजाना 1,000 से अधिक मरीजों की इस महामारी के कारण मौत हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 97,894 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। इसके साथ ही 1,132 मरीजों की मौत हो गई है। पितृपक्ष के समापन और देवी के पक्ष के आगमन के दिन महालय के पावन दिन पर आज राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ रायगंज में भी लोगों ने नदिया किनारे अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित किया। रायगंज के कुलदीप नदी के खरमुजात और बागान घाट सहित अन्य जगहों पर लोग एकत्रित हुए थे और हाथों में अंजलि देकर पंडितों की उपस्थिति में अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित किया। পিতামাতার উদ্দেশ্যে মানে মনের শান্তি, ওনাদের আত্মা যেন শান্তি হয়, চিরশান্তি হয়, হ্যাঁ, যেটা আমরা পূর্বে থেকে শুনে এসেছি সেইভাবে আমরা কর্ম করে যাচ্ছি। তারপরে হ্যাঁ মানে ওনাদের উদ্দেশ্যে কর্ম করছি, হ্যাঁ, যেটা আমরা শুনে আসছি। ওনারা মুক্তি পান, ওনারা স্বর্গে আশা করেন আজকের দিনের জন্য, যে ছেলে মেয়ে সবাইকে রেখে এসেছি তারা কেমন আছে, হ্যাঁ, আমরা যখন ভালো আছি ওনারা যেন কোনো শান্তি পান সব দিক দিয়ে, যদি জন্মগ্রহণ করেন কোথাও, হ্যাঁ হ্যাঁ তর্পণ কেন পিতামাতার উদ্দেশ্যে, মানে আমাদের শান্তি, আমরা যেন সবাই শান্তিতে থাকি। ওনারাও আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন, হ্যাঁ, ওনারাও যেখানেই জন্মগ্রহণ করেন, হ্যাঁ, শান্তিতে থাকেন। আর মরতে একদিনই আসেন, মানে পিতৃলোকে ইয়ের জন্য, তর্পণের জন্য। ওনারাও আশা করেন যে ছেলে মেয়েদের সবাইকে রেখে এসেছি, ওরা যে শান্তিতে আছে, হ্যাঁ। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी
हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर बढ़ रहा है अत्याचार, ये बातें कही है भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल ने। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खामोशी पर उठाया सवाल। भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल ने कहा, तृणमूल के शासनकाल में राज्य की महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को सिलीगुड़ी पहुंची अग्निमित्रा पाल ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में हर जगह महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ सिलीगुड़ी में विशाल रैली निकाली जाएगी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद यहां महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेत्री ने कहा, बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने के बावजूद मुख्यमंत्री खामोश बैठी हुई है। अग्निमित्रा पाल ने कहा, बंगाल में महिलाओं के अलावा नाबालिका और युवती को भी नहीं बख्शा जाता है। বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল বোধহয় ওনার নাম, তার খাস লোক হচ্ছে 55। দিদি 21 তারিখ মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, সভা করবেন এখানে প্রশাসন বৈঠকে, কি হবে আর দিদি লাস্ট মোমেন্টে এত দৌড়াদৌড়ি করছেন। আমি তো বললাম দিদি কিছুতেই দিদি বুঝে গেছেন। আসলে দিদি তো কদিন আগেই একটি সভাতে বলেও দিয়েছেন যে একজন পুলিশ অফিসারকে কি তুমি কি কাজ করছো না, আমি থাকবো না বলে তুমি ভেবেছো, সেই জন্য তুমি কাজ করছো না। তিনি নিজেও বুঝে গেছেন, কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার নেতা নেত্রীদেরকে বোঝাতে পারছেন না যে আসলে গ্রাউন্ড লেভেলে মানুষ, বাংলার মানুষ, আমি তো বলছি সুনামির মতো বিজেপিকে সাপোর্ট করছে, সুনামির মতো মানুষ বিজেপিকে জয়েন করছে। আমি দুদিন আগে মেমারি গেছিলাম, বর্ধমানের একটি ছোট্ট শহর মেমারি, সেখানে 1200 পরিবার জয়েন করেছে। সিপিএম থেকে, কংগ্রেস থেকে, তৃণমূল থেকে 1200 পরিবার, মানে এক একটা পরিবারে যদি 4 জন করে থাকে 5000 লোক জয়েন করেছে। এটা তো সবে শুরু, পিকচার আবি বাকি হ্যায়। কদিন বাদে অনেক শুরু হবে অনেক কিছু, তারপর দেখবেন কি হয়। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 24 घंटे में 3237 नए मामले सामने, 61 और लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बुधवार को 61 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4123 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि 3237 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,12,383 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,971 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जिसके बाद राज्य में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 86.69% हो गई है। राज्य में अब 24,147 मरीजों का इलाज चल रहा है। बौखलाए चमगादड़ चीन ने अपनाया 1962 वाला पैंतरा। लद्दाख में सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए लाउड स्पीकर पर बजा रहे पंजाबी गाने। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी तनाव के बीच चीनी सैनिकों ने अब नया पैंतरा अपनाया है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किए जाने और पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाली जगहों पर भारतीय सेना के फतेह से बौखलाए चीन ने अब नई चाल के तहत अपना फॉरवर्ड पोस्ट पर लाउड स्पीकर लगाया है। पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं और उसमें पंजाबी गाने बजाने शुरू किए हैं। माना जा रहा है कि चीन की यह चाल भारतीय जवानों के ध्यान को भटकाने के लिए है। चीन ने फिंगर 4 पर अपनी जिन फ्रंट चौकियों पर लाउड स्पीकर लगाया है और भारतीय सेना की 24 घंटे निगरानी में है। सूत्रों की माने तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जवानों की लगातार निगरानी से परेशान होकर चीनी सैनिकों ने यह ड्रामा पर उतना ध्यान भटकाने के लिए किया गया है और लगातार पंजाबी गाने बजा रहे हैं, या फिर प्रेशर रिलीव करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देश भर में आज यानी 17 सितंबर 2020 को विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म सूर्य क्रांति के दिन हुआ था और यही कारण है कि उनके जयंती या विश्वकर्मा डे के रूप में भी इस दिन को आज ही मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्वमान्य देव शिल्पी विश्वकर्मा अपने विशेष प्रकार के ज्ञान के देवता तुल्य माने जाते हैं और उन्हें पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा के पूजन के बिना कोई भी तकनीकी काम शुभ नहीं माना जाता। विश्वकर्मा जयंती हर साल अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हर साल 17 सितंबर को तकनीकी ज्ञान के रचनाकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा के पूजन अर्चना के बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं माना जाता। इसलिए विश्वकर्मा जयंती के दिन विभिन्न कार्यों के प्रयुक्त होने वाले औजारों,
कल कारखानों में लगी मशीनों की पूजा की जाती है। अब प्रतिदिन 5000 श्रद्धालु कर सकेंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन। अब प्रतिदिन 5000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर के 4500 और अन्य राज्यों से 500 यात्री आ सकते हैं। इससे पहले रोजाना 2000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति दी थी, जिसमें 1500 स्थानीय व 500 अन्य राज्य के थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार 30 सितंबर तक आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं का मां वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पहले की तरह जारी रहेगा। टाटा कंपनी बनाएगी नई संसद। टाटा को मिला संसद की नई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। 8,865 करोड़ की लागत से पुरानी इमारत के सामने ही बनेगी नई इमारत। संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को मिला है। 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इमारत का कॉन्ट्रैक्ट बुधवार को टाटा ने हासिल कर लिया है। एक अधिकारी के मुताबिक इमारत का निर्माण 21 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। यह इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। इस इमारत का मास्टर प्लान पिछले साल तैयार किया गया था। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच संसद के दोनों सदनों के लिए ज्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएंगी। साथ ही केंद्रीय सचिवालय के लिए 10 नई इमारतें बनाई जाएंगी। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखाघर की इमारत को वैसे ही रखा जाएगा। हालांकि मास्टर प्लान तैयार होते वक्त केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये प्लान अंतिम नहीं है। श्रीनगर के भाटमालू में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल भी हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुठभेड़ श्रीनगर के भाटमालू इलाके में चल रही है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मोर्चे पर है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। यह मुठभेड़ गुरुवार तड़के 3:50 से चल रही है। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की गतिविधि बढ़ा दी गई है। उधर जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ जिले के बालाकोट और मेडर सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गुरुवार सुबह लगभग 6 बजे फायरिंग की। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।